morning, students. Today we start new chapter, stability of floating bodies. First definition is stable and unstable equilibrium. Suppose a floating body partially immersed in a liquid is in equilibrium under certain forces. If the body is slightly displaced from its position of equilibrium, then the forces acting on it may tend to return the body to its original position or may tend to recede further away from its original position. कि अगर कोई भी बॉडी जो है जो आपकी पार्शली इमर्स्ड है लिक्विड में और वो आपकी इक्विलिब्रियम में है अंडर सर्टेन फोर्सेस, तो उसका मतलब कि अगर हम बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे उसकी अपनी पोजीशन से, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं वो क्या ट्राई करेंगे, आइदर दे ट्राई टू return the body to its original position or tend to recede further away from its original position. The first case of equilibrium is said to be stable, whereas in second case we say equilibrium is stable है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या है अनस्टेबल. ठीक है, मीन्स अगर वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है तो स्टेबल और दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो अनस्टेबल. इन सम केसेस इट मे so happen that body remains in equilibrium in any position when displaced from original position of equilibrium. वो क्या कह रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉडी है वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ही रहेगी कि जब हम when displaced from original position of equilibrium, जब हम उसको ओरिजिनल पोजीशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड करेंगे. The equilibrium is said to be neutral in this case. और इस केस में जो equilibrium है उसको हम क्या बोलेंगे, neutral equilibrium है. We know that when body floats in a liquid, जब body float करती है liquid में, तो the center of gravity G of the body and center of buoyancy H are in same vertical line. आपको पता है कि center of gravity means body की center of gravity और displaced liquid की जो center of gravity है वो same vertical line में lie करते हैं. And weight of the body is equal to the weight of liquid displaced. ये रिजल्ट भी हम पढ़ चुके हैं. Obviously, small horizontal displacement without rotation will not affect the equilibrium as there is no resultant horizontal force on the body. वो क्या कह रहा है, आपको बात समझ में आ रही है कि जो स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है विदाउट रोटेशन वो इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट नहीं करेगा because as there is no resultant horizontal force in the body. Therefore, equilibrium is neutral in this case. In case of small vertical displacement, downward the force of buoyancy increases. Small vertical displacement downward जो होगी वो force of buoyancy क्या होगा, increase, which tends to restore the body to its former position. And for small vertical displacement, which decrease the force of buoyancy, will again tend to bring the body back to its original position. So therefore, in case of small vertical displacements, body is in stable equilibrium. However, in case of small rotational displacement, a shape of the liquid but not the mass of the liquid displaced. A stability of equilibrium stability of equilibrium depends upon the position of meta center which we are going to define below. वो क्या कह रहा है कि स्मॉल रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट के केस में जो क्या करती है, जब रोटेट करेंगे तो शेप ऑफ द लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, बट नॉट द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका मास जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, शेप ऑफ द लिक्विड. स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर की पोजीशन पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम की, जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटा सेंटर. सपोज अ बॉडी फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम विद AB एज द प्लेन ऑफ फ्लोटेशन, कि आपकी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है. AB क्या है, उसका प्लेन ऑफ फ्लोटेशन है, ये दिखा रखा है AB. Let G be the center of gravity of the body and H is the center of buoyancy. G center of gravity है बॉडी का और H center of gravity है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का. As body is floating in equilibrium, GH सेम लाइन ऑफ एक्शन में होते हैं, G और H दोनों ही, तो GH क्या है आपका वर्टिकल है. Let body be slightly rotated. बॉडी को हमने क्या किया, स्लाइटली रोटेट कर दिया, आप देख रहे हो रोटेटेड पोजीशन में बॉडी को.
in such a way that mass of the liquid displaced remains same. सपोज मास सेम रहा है, हमने क्या सपोज किया, जब लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो चुकी है. सपोज h डैश इज द सेंटर ऑफ बायंसी इन इट्स न्यू पोजीशन. न्यू पोजीशन में जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो क्या बन चुका है, h डैश. पॉइंट m क्या है, m इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ gh एंड वर्टिकल थ्रू h डैश. देखो ये जो gh लाइन जो थी उसको हमने फर्दर प्रोड्यूस किया और जो ये h डैश से हमने वर्टिकल ड्रॉ किया, जहां जो ये पॉइंट जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर. द पॉइंट m ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ gh एंड वर्टिकल थ्रू h डैश इज कॉल्ड मेटा सेंटर. ठीक है, क्लियर है मेटा सेंटर क्या है. दिमाग में क्या कह रहे हैं वो, मेटा सेंटर एग्जिस्ट ओनली इफ hg एंड वर्टिकल थ्रू h डैश इंटरसेक्ट. मेटा सेंटर तो जब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों लाइंस जो हम वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. In other words, meta center exists if line HG and vertical through H are coplanar. Coplanar means जब ये एक ही प्लेन में, ठीक है, तभी क्योंकि वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज मेटा सेंटर इज अबव और बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी. कि जो हम कह रहे हैं अभी तक तो जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, अब हम उसी को किसके सेंस में पढ़ रहे हैं, मेटा सेंटर के सेंस में, कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल कब होगा, अगर मेटा सेंटर जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अनस्टेबल कब होगा, इफ मेटा सेंटर लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, देखो इसका प्रूफ. Let the floating body be slightly displaced from the position of equilibrium. Floating body को हमने slightly displaced किया उसकी position से. In this position, weight W of the body acts vertically downward through G. Weight जो vertically downward act करेगा G point से through G. As the weight of the liquid displaced remains unchanged and it is equal to the weight W of the body, therefore upward thrust W acts through H dash and the center of buoyancy in the new position is this denoted by h dash. वो क्या कह रहे हैं कि जैसे वेट जो है लिक्विड का हम क्या लेके चल रहे हैं, वो हमारा वेट जो है लिक्विड का क्या रहेगा, अनचेंज जब हम उसको डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द वेट W ऑफ द बॉडी. देयरफॉर अपवर्ड थ्रस्ट W जो है वो एक्ट करेगा कहाँ, थ्रू h डैश, और h डैश जो है वो क्या है, new position of the center of buoyancy. The two equal and opposite forces each equal to W form a couple. आपको पता है what is a couple, equal and opposite forces क्या फॉर्म करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं. एंड मोमेंट ऑफ कपल किसके इक्वल है, दिस फोर्स मींस W weight into perpendicular distance between the weights W and W. ठीक है, अब perpendicular distance between the two weights W and W is equal to gm sin theta. ये रिजल्ट जो है ये आप देख सकते हो कि यहाँ अगर आप ज्वाइन करो इसको, ये क्या बन जाएगी, आपकी एक ट्रायंगल बन जाएगी इस तरीके से, और ये एंगल आपका 90 एंगल बनेगा. यहाँ जो ये एंगल बनेगा तो ये आपका एक क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूज के तरीके से काम करेगा ये, अगर आप इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये अगर हम ये ज्वाइन कर देंगे लाइन यहाँ से h डैश ज्वाइन कर दें, तो अब जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया, gm sin थीटा बन गया आपका. और gm को हम क्या लिख सकते हैं, hm माइनस hg लिखा जा सकता है. और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन gm h डैश. gm h डैश मीन्स दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. ठीक है, if the moment of couple is positive, the body will tend to come back to its original equilibrium position. अगर moment of couple आपका positive है तो बॉडी क्या करेगी, ट्राई करेगी, कोशिश करेगी, tend to come back to its original position. Equilibrium is stable or unstable according as gm is greater than 0 or less than 0. If gm is greater than 0 तो equilibrium आपका stable होगा, और अगर less than 0 है तो equilibrium आपका unstable होगा.
तो gm ग्रेटर देन 0 का मतलब gm क्या था, hm माइनस hg, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड केस में ये क्या है आपके पास, लेस देन 0 है। अकॉर्डिंग एज hm इज ग्रेटर देन hg और hm इज लेस देन hg means according as m means meta center is above the g or below the g, result is proved। क्योंकि हमने क्या कहा था कि if m means meta center is above the g, उसके अगर ऊपर है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस